pH plus POH is equal to pKw। आपसे पूछा जा सकता है कि इसको प्रूव करें इक्वेशन को, या pH plus POH is equal to 14। अच्छा, तो जब हम इस इक्वेशन को प्रूव करने जाएंगे तो वी नो that water in liquid form can ionize, giving hydrogen ion aqueous and hydroxyl ion aqueous, and the reverse process make the water again. Writing equilibrium constant for this equation, you will get Kc is equal to molar concentration of hydrogen ion into molar concentration of hydroxyl ion divided by molar concentration of water. Again, molarity of water, H2O, molar concentration is 55.5 molar. It remains constant. So we should transfer this molar concentration of H2O to the left side by multiplying both sides with molar concentration of H2O and molar concentration of H2O. यहाँ से H2O कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा कि molar concentration of H2O into Kc is equal to molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydroxyl ion. Now, constant multiplied constant gives another constant, that is Kw equals to molar concentration of hydrogen ion into molar concentration of hydroxyl ion. Kw is known as ionic product of water. Kw is ionic product of water. Okay. This Kw has a value of 1 into 10 power minus 14. So we can say that molar concentration of hydrogen ion into molar concentration of hydroxyl ion is equal to 10 raised to power minus 14. बस 1 नहीं लिखते, वही वैल्यू रहेगी, लिखा नहीं लिखा। अच्छा, अब यहाँ पे हम डिराइवेशन शुरू करेंगे यहाँ से। तो क्या करेंगे, taking a negative log of both sides, दोनों साइड्स का नेगेटिव लॉग ले लें, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव लॉग into molar concentration of hydrogen ion and molar concentration of hydroxyl ion is equal to negative log 10 raised to power minus 14. अच्छा, फर्दर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो लॉग का एक रूल आपके जहन में हो, लॉग ए बी, ये जब सॉल्व होगा तो ये बन जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहाँ भी अगर हम देख लें, ये लॉग हुआ और ए ले ले हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, बी ले ले हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन को, तो जब ये हम लॉग रूल अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्लस नेगेटिव लॉग
of molar concentration of hydroxyline is equal to negative log 10 s to power minus 14. Further, negative log of molar concentration of hydrogen ion is the definition of pH. Negative log of molar concentration of hydroxyline is the definition of POH, और negative log 10 s to power minus 14 सॉल्व होके ये मिलेगा कि माइनस और माइनस 14 जो एक्सपोनेंट है वो कोएफिशिएंट बन जाएगा और आगे मिल जाएगा log 10. ये फर्दर सॉल्व होके माइनस इंटू माइनस प्लस तो 14 and log 10 is equal to 1. So we got 14. Putting these values in the equation, this negative log of molar concentration of hydrogen ion is pH plus negative log of molar concentration of hydroxyline is POH, and negative log 10 s to power minus 14 वो हो जाएगा 14 यहाँ पे जो हमने डिराइव किया, या pH प्लस POH इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो वैल्यू है 10 s to power minus 14 ये KW की वैल्यू है. तो अगर KW का नेगेटिव लॉग लेंगे तो नेगेटिव लॉग 10 s to power minus 14 हो जाएगा. तो मीन्स कि ये जो 14 है दिस इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ KW, तो हम इधर KW भी लिख सकते हैं. इस इक्वेशन से अब हमें क्या कंसेप्ट लेना चाहिए? एक तो ये कि pH प्लस POH जब भी आप इनकी वैल्यूज़ जमा करोगे तो वो 14 आपको देगा, या जब भी pH और POH की वैल्यूज़ आप प्लस करोगे तो वो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बनेगा. सॉरी, इट इज़ PKW. तो वो आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बनेगा. तो इस रिलेशंस को इस्तेमाल करके हम pH मालूम करें तो POH भी उस सॉल्यूशन का मालूम कर सकते हैं. तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इससे यूँ मिलेंगे कि दिया गया होगा एसिड, लेकिन मांगा जाएगा कि उसका POH मालूम करो. तो लेट्स सी, एक एग्जांपल यहाँ से लेते हैं. एग्जांपल में कि HCl का सॉल्यूशन 0.001 मोलर बनाया गया. तो इसके लिए POH फाइंड आउट करो. तो एसिड दिया है, एसिड के लिए तो pH होना चाहिए, लेकिन वो POH मांग रहे हैं. तो यस, वी कैन डू इट. तो कम टू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन के लिए आप ये करोगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल HCl ये आयोनाइज होगा गिविंग हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन. अब HCl अगर 1 मोल हम यूज़ करेंगे, 1 मोलर, तो स्टाइक्योमेट्री के मुताबिक 1 मोलर हाइड्रोजन आयन बनेगा और 1 मोलर क्लोराइड आयन बनेगा 1:1 रेशो में. अब उधर इस्तेमाल हुआ है 0.001 मोलर. तो अगेन 0.001 मोलर हाइड्रोजन आयन बनेगा, 0.001 मोलर क्लोराइड आयन बनेगा. यानी हमें मिली इस फाइंडिंग से molar concentration of hydrogen ion in this solution is 0.001 molar. पावर में ले चलोगे तो हो जाएगा 10 s to power
-3 मोलर। यहाँ इसको भी समझ लें कि पावर में हम इसको कैसे ले जा सकते हैं। तो एक तो ये कि 0.001 पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 1 लग जाएगा। 0 के लिए 0, 0 के लिए 0 और 1 के लिए 0, यानी ये 10⁻³ हो गया इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 10⁻³। अब ये 10 जब ऊपर चलेगा तो 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो बस अगेन 1 को मेंशन नहीं किया जाता, तो हमने डायरेक्ट लिखा कि 10⁻³ या फिर इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो 0.001 मोलर। तो देखें इस पॉइंट के लिए 10 लगा दें और फिर देखें कि पॉइंट और लास्ट डिजिट के दरमियान टोटल कितने डिजिट्स हैं। सो देयर आर 3 डिजिट्स, 1 2 यानी 2 ज़ीरोज़ हैं और एक 1 है, तो टोटल बने 3 डिजिट्स। फिर रिमेंबर पॉइंट जब हम राइट की तरफ ले जाएंगे तो एक्सपोनेंट डिक्रीज़ होगा, और अगर इस पॉइंट को हम लेफ़्ट की तरफ ले जाते हैं तो फिर इंक्रीज़ होगा। तो इस वजह से हम पॉइंट ले गए हैं राइट की तरफ और 3 डिजिट्स उसने जंप लगाया, तो ये हो जाएगा डिक्रीज़ -3। तो इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो फिर आप ये फॉलो कर सकते हो। अब pH के डेफिनेशन से ही हम pH ऑफ दिस HCl सॉल्यूशन मालूम करेंगे। तो pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। वैल्यूज़ लगा दें। pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग 10⁻³ तो अगेन यहाँ पे अब लॉग A² का रूल फॉलो होगा। कुछ यूँ कि जो ये A का एक्सपोनेंट है इसको कोएफिशिएंट लगा दो इधर, तो 2 आगे आएगा और बाकी लॉग A अपनी जगह पे। तो इस तरह इधर भी ये कोएफिशिएंट है और ये 10 ले लें कि ये वो लॉग A है। तो यहाँ पे अब इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा pH इज इक्वल टू दिस नेगेटिव फार्मूले वाला -3 कोएफिशिएंट बना और आगे बना log 10। अब log 10 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा pH इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस बिकम्स प्लस, तो 3 और log 10 इज इक्वल टू 1, तो pH इज़ 3। लेकिन क्वेश्चन हमसे मांगा गया है कि pOH मालूम करें। तो उसको मालूम करने के लिए वी नो दैट pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14। अब pH को राइट पे ले जाएं तो माइनस हो जाएगा दोनों साइड पे, इधर से कैंसिल होएगा, तो हमें मिल जाएगा pOH इज इक्वल टू 14 -3 और ये हो जाएगा 11। सो pOH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज़ 11 और pH ऑफ दिस सॉल्यूशन इज़ 3। तो शॉर्टकट, अगर pH 2 होता तो 2 के साथ क्या प्लस करें कि 12 हो जाए, तो इसके साथ अगर हम 14 हो जाए सॉरी, तो 12 प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा pOH इसका, तो टोटल 14 मिलेगा। तो इस तरह शॉर्टकट तरीके से आप यूँ करोगे और मुकम्मल डिटेल से आप ये स्टेप्स फॉलो करोगे। अब यहाँ पे कुछ रिलेशंस आपके जहन में होने चाहिए। एक रिलेशन ये कि एक सॉल्यूशन का आपने pH मालूम किया
और उस सॉल्यूशन का pOH मालूम करोगे तो pH एंड pOH हैज़ इन्वर्स रिलेशन। pH कम आएगा तो pOH ज़्यादा होगा। एक ये रिलेशन। दूसरा रिलेशन, pH is inversely proportional to molar concentration of hydrogen ion। हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो pH की वैल्यू कम होगी, हाइड्रोजन आयन कम होंगे तो pH की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगला रिलेशन, pOH is inversely proportional to molar concentration of hydroxyl ion। हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ेंगे तो pOH कम होगा और अगर ये ज़्यादा होंगे तो pOH फिर कम होगा। अच्छा, तो अब इन रिलेशन को इस्तेमाल करते हुए हमें ये वैल्यू रिलेशन मिलेगी, pH ज़ीरो से 14 तक वैल्यू इसकी होती है। अब pOH इन्वर्स रिलेशन से कंपेयर करेंगे तो अगर pH ज़ीरो है तो pOH फिर 14 होगा, क्योंकि हमें मिलना चाहिए pH प्लस pOH इज इक्वल टू 14, तो 0 प्लस 14 इज़ 14। इसी तरह से अगर pH 1 हो जाए तो pOH हो जाएगा 13। इसी तरह से जब जाते जाओगे और 14 pH हो जाए तो pOH फिर 0 होगा। अच्छा, pH का दरमियान जो है वो 7 है, pOH का भी 7 है। इसका मतलब ये है कि जब एक सॉल्यूशन का pH 7 होगा तो उसका pOH भी 7 होगा। मीन्स कि इस दौरान हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ इक्वल टू हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन। तो इस किस्म का सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन कहलाएगा। गॉट इट? अच्छा, अब अगर आप pH 7 से 14 तक जाए तो pOH 7 से 0 तक जाएगा, तो सॉल्यूशन होता जाएगा बेसिक। यानी रिलेशन ये हुआ कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन अगर कम होगी, लेस देन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सल आयन, तो सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक। अब यहाँ पे देख लें कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो रहे हैं तो दिस कंसंट्रेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, तो pH की वैल्यू बढ़ने लगेगी क्योंकि हम नेगेटिव लॉग ले रहे हैं और नेगेटिव लॉग में छोटी वैल्यू बड़ी हो जाती है या बड़ी वैल्यू छोटी हो जाती है जब उनका हम नेगेटिव लॉग लेते हैं। तो अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम है तो ये हुआ, तो pH ज़्यादा होगा तो 7 से ऊपर जाएगा। और अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन pH 7 से नीचे जाए तो pOH 7 से ऊपर जाएगा, तो फिर ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा। तो हम एक रिलेशन यहाँ से ये लिख सकते हैं कि इफ़ हाइड्रोजन आयन concentration are greater than hydroxyl ion concentration, then solution will be acidic। तो देखें, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो pH उसके साथ कम होता जाएगा, तो इस वजह से pH 7 की तरफ जा रहा है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है।
इन सब कंडीशन में, चाहे इक्वल हों हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल आयन, कंसंट्रेशन में अनइक्वल हों, सारी कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि अब इस सॉल्यूशन में Kw की वैल्यू क्या होगी, इस सॉल्यूशन में Kw की वैल्यू क्या होगी, या फिर इस सॉल्यूशन में Kw की वैल्यू क्या होगी, तो सब में Kw की वैल्यू आपको 14 मिलेगी अगर आप ये सारी ऑब्जर्वेशंस 25 डिग्री सेल्सियस पे कर रहे हैं। टेम्परेचर चेंज करोगे तो Kw की वैल्यू भी चेंज होगी, फिर सॉल्यूशन का pH भी चेंज होगा। 7 पे फिर न्यूट्रल हमें नहीं मिलेगा। उस टेम्परेचर चेंज से जो चेंज आएगा उसके मुताबिक हमें उधर फिर सॉल्यूशन का pH मिलेगा, 7 नहीं मिलेगा। ठीक, 7 तब मिलेगा जब सारी कैलकुलेशन हम करेंगे 825 डिग्री सेल्सियस। अगर हम अपनी ये सारी कैलकुलेशन इस फिगर की शक्ल में देखें तो वहाँ पे ये पॉइंट्स याद हों। pH इज इक्वल टू 7, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाइड्रोक्सल के बराबर होगा। pH लेस देन 7 तो सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज़्यादा, हाइड्रोक्सल आयन कम। pH अगर 7 से ऊपर है देन सोल्यूशन बेसिक होगा, हाइड्रोजन आयन कम होंगे, हाइड्रोक्सल आयन ज़्यादा होंगे। और यहाँ पे उनका इन्वर्स और डायरेक्ट रिलेशन भी आप देख सकते हो। यहाँ पे देखें, हाइड्रोजन आयन हाइड्रोनियम आयन की तरह लिखा जाता है। अगर हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रहा है डाउन, तो उसके साथ pH डिक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह से अगर आप हाइड्रोक्सल आयन देखें तो नीचे से ऊपर जाते हुए हाइड्रोक्सल आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो pOH उसके साथ कम हो रहा है। तो बेसिक कंडीशन में आप देख लें, न्यूट्रल कंडीशन में कैलकुलेट करें, और इसी तरह से एसिडिक कंडीशन में आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था pH के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो आपके जहन में याद हों, और इस दूसरे डायग्राम में आप कुछ चीज़ों के जो डेली यूज़ प्रोडक्ट्स हैं उनमें किसका कितना pH होता है। ज़्यादातर pH ही हम इस्तेमाल करते हैं। हमें pH मिले तो pOH ऑटोमेटिकली उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो याद हो आपको, एक तो अभी जो हमने सॉल्यूशन किया एग्जाम्पल का, उसमें ये था कि हाइड्रोजन आयन या फिर हाइड्रोक्सल आयन का कंसंट्रेशन गिवन हो तो हम उससे pH और pOH मालूम कर रहे थे। लेकिन अब अगर ये हो कि pH गिवन हो और हमसे मांगा जाए कि अब इस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर दो, या pOH गिवन हो और मांगा जाए कि इसमें अब हाइड्रोक्सल आयन की कंसंट्रेशन मालूम करो, या ये भी हो सकता है कि pOH दिया गया हो और उससे आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, तो इनडायरेक्ट मेथड से pOH से हाइड्रोक्सल आयन और हाइड्रोक्सल आयन से फिर हाइड्रोजन आयन ईज़िली कैलकुलेट हो सकते हैं। तो इनके लिए जो रिलेशन आपको याद हो, pH ये था कि pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव लॉग को ख़त्म करने के लिए आपको अब ये मिलेगा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर -pH। तो ये अब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की फाइंडिंग के लिए फार्मूला बना, यानी जो सॉल्यूशन का pH होगा वो 10 का नेगेटिव पावर लगा दो तो वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो जाएगा। इसी तरह से
हाइड्रोक्सल आयन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोक्सल आयन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस POH। तो यहाँ से फिर आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाए कि एक सॉल्यूशन का जो pH है दैट इज़ 3, इसमें आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम कर दो कि कितने होंगे, साथ में हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन भी मालूम कर दो कि वो कितना होगा। तो लेट्स सॉल्व इट। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हाइड्रोजन आयन हुआ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस PH। तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस PH की वैल्यू 3 है तो 3 लग जाएगा एंड मोलर उसका कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो हमने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मालूम की। हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ये रिलेशन होगा कि वी नो दैट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 14। तो वो 10 इज माइनस 14, अब जाके 10 टू पावर माइनस 3 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। तो हाइड्रोक्सल आयन को फाइंड करने के लिए हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन लेफ़्ट पे भी डिवाइड कर दें और राइट पे भी डिवाइड कर दें। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ से ये ख़त्म हो जाएगा एंड वी आर गेटिंग के हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इन दिस सोल्यूशन इज़ 10 टू द पावर माइनस 14 divided by 10 to power minus 3। 10 to power minus 3 ऊपर चले तो 10 to power minus 14 मल्टीप्लाई 10 to power 3 और इधर से अब 10 to the minus 11 मोलर। तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सल आयन का कंसंट्रेशन और ये था हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन। तो इस किस्म के रिलेशन से आप कैलकुलेशन इस फॉर्म में करोगे।